video. Dear student, today we are going to start a new chapter, that is Python fundamentals, and in this chapter we will learn about the fundamental of Python that are required later on to make to perform coding in Python. So let us begin with this topic now. The first topic that we will discuss today is Python character set. Dear student, as you know, every language, spoken language you can say, either it is Hindi, English, Spanish or some other German, every language has a character set, right? It has some alphabets that are used in language. Then we have some punctuation marks, some special symbols, some special words that are being used in that particular language. Similarly, in computer languages, every computer language has a character set, and Python too has its character set. So what is character set? A character set is a set of valid characters that a language can recognize. That means the valid characters which are available in a computer language is called a character set. A character represents any letter, digit or any other symbol. It can be a character can be a digit, it can be a letter, for example A, B, C, D, etc., or it can be any other symbol. There are many special symbols, plus, the symbol of plus, minus, division, underscore, hash, at the rate, these are called symbols. Python has following character set. Every the Python language has got letters as its character set, in its character set. So the letters that we use in English language, that is A to Z small cases and A to Z capital letters, these forms the letters of Python character set also. Similarly, we can use the digits 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4 up to 9. Any digit can be used in Python character set. Then we have special symbols such as spaces, plus, minus, division, multiplication, brackets, curly brace, square bracket, parenthesis, left right parenthesis, greater than sign, smaller than sign, etc. Then we have white spaces, blank space, tab, enter key. As you know, when we press tab key from the keyboard, we actually moving our cursor to certain space forward, new line character, etc. Some other characters are also there. Python can process all ASCII and Unicode characters as a part of data or literal. So you have to understand one thing, that every computer language has its character set, and using those characters we can make other component of a programming language. Next is token. Token is nothing but it is a smallest individual unit in a program. It is also known as lexical unit, right? So when we write a program in any computer language, we need to have some tokens that we use in that program. The Python has following tokens. The first one is called keywords. Then we have identifiers, literals, operators and punctuators. Now let us discuss them one by one. First of all, keywords. Keywords are nothing but these are the special words that are predefined in a computer language and has got some specific meaning to its compiler or interpreter. यानी कीवर्ड क्या होता है?
ये पहले से बने हुए स्पेशल वर्ड्स हैं, ये हम इनको कह सकते हैं रिजर्व वर्ड्स, जो पहले से बने हुए। जैसे किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो वोकैबुलरी होती है ना, कुछ वर्ड्स पहले से डिफाइंड होते हैं, राइट। तो उसी तरह से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स पहले से डिफाइंड है, जिनका उनके कंपाइलर और इंटरप्रेटर के लिए एक स्पेसिफिक मीनिंग है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। Some examples of keywords in Python are false, for, in, not, else, if, elif, while, break, def, as, etc. So there are many, these are only few of them. There are many keywords that are reserved words which are already defined in Python and are used for some specific purpose in that particular language. One thing you should know about keyword is that keyword must not be used as normal identifiers name. So this sentence you will understand only when you know about identifiers. So let us move to identifier next. This is the second token called identifier. Identifiers are fundamental building block of a program and are names given to different part of a program. When we write a program, in a program we have to make lot of variables, objects, we have to create functions, list, tuple, dictionaries, right? And all these are to be given some specific name. So those names are referred to as identifiers. So that means identifiers are nothing but the name given to different part of a program or different items in a program are referred to as identifiers. Next is rules to form identifiers. So when we, as you know, identifier is nothing but they are names. So how will you name those identifiers? How will you give name to identifier? There are certain rules and you have to follow these rules strictly while creating identifier. The very first rule is called the identifier can have letters and digits only. So whenever you make an identifier name, it should have only letter and digits. No other characters will be allowed. Second thing is the first character must be a letter. The very first character in any identifier should be a letter. Letter means either it will have alphabet, right? In first rule it says the identifiers can have letters and digits. So it can have both letter as well as digit, but digit cannot be the first letter. First letter should always be a first character should always be a letter, and the underscore character is treated as a letter. So that means the underscore can be used as first character in an identifier name. Third point is the upper and lower case letters are different. Upper case letters होते हैं जो capital letters होते हैं English alphabet, और जो lower case का मतलब small ABCD, small letters या alphabets you can say. तो ये जो है केस ये डिफरेंट होते हैं. मीन्स अगर आप कैपिटल ए लिखेंगे और स्मॉल ए लिखेंगे तो दोनों दो अलग अलग एंटिटीज होंगी, दो अलग चीजें होंगी, तो वो सेम नहीं होगा. ऑल कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट. ऑल कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट का मतलब है किसी भी आइडेंटिफायर के नाम में जितने कैरेक्टर आप यूज करेंगे उन वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे. मीन्स ऐसा नहीं कि पहले 4 लेटर सिग्निफिकेंट होंगे बाकी के इनसिग्निफिकेंट होंगे, सारे मतलब एग्जैक्ट मैचिंग होगी आपकी जब भी आइडेंटिफायर नेम यूज होगा. इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ. आइडेंटिफायर नेम की जो लेंथ है वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं है. एंड आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड. आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं होना चाहिए. अभी आपने पीछे पढ़े थे कीवर्ड, जैसे आपको हमने बताया था ये सारे कीवर्ड्स हैं फॉल्स, फॉर, इन, और. तो आप जब आइडेंटिफायर बनाएंगे तो वो जो नाम आप देंगे वो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, राइट. यानी जो कीवर्ड्स हैं उनको आप आइडेंटिफायर नाम से
नहीं, आइडेंटिफायर के नाम डिफाइन करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। स्पेशल कैरेक्टर कोई भी यूज नहीं होगा, क्योंकि आपको पहला रूल ही कहता है कि आइडेंटिफायर कैन हैव लेटर्स एंड डिजिट्स, और लेटर्स होते हैं A to Z, सारे अल्फाबेट, स्मॉल और कैपिटल, राइट, और अंडरस्कोर, तो ये लेटर्स हैं, और डिजिट 0 to 9, तो उन्हीं से मिलके आइडेंटिफायर का नाम आपको बनाना है। सम वैलिड आइडेंटिफायर्स आर माई फाइल, वैलिड है क्योंकि इसमें सारे अल्फाबेट यूज आप कर रहे हैं। डेट 9_2077_90, इसमें ये भी ठीक है क्योंकि आप केवल अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, डिजिट यूज कर रहे हैं, अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं, और पहला लेटर इसका कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर इसका डिजिट क्या है, लेटर है, ठीक। और अंडरस्कोर मार्क, यहाँ पे पहला लेटर क्या है, अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर भी क्या ट्रीट होता है, काउंट एज लेटर, तो इसका मतलब आप इस रूल को फुलफिल कर रहे हैं कि पहला लेटर आपका क्या होना चाहिए, पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, इट शुड बी ए लेटर। फिर Z23T5, इसमें भी आप अल्फाबेट और डिजिट यूज कर रहे हैं, तो ओके है। माई फाइल, आपने इसको यूज किया, ये कैपिटल लेटर में है लेकिन सारे अल्फाबेट हैं, तो ये ओके। अब ये जो माई फाइल है और ये जो पहला माई फाइल है, ये दो अलग अलग चीजें हैं क्योंकि इसमें केस अलग अलग है। यहाँ पे Y स्मॉल है, ILE भी स्मॉल है, यहाँ पे सारा कैपिटल है, ठीक। इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, डाटा हाइफन, ये अंडरस्कोर नहीं है, हाइफन है, माइनस का साइन है, ठीक है। अंडरस्कोर ऐसा आता है, नीचे की तरफ आता है। डाटा हाइफन रैक, ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि इसमें आप हाइफन का साइन यूज कर रहे हैं और हाइफन का साइन आप आइडेंटिफायर नेम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। 29 टॉप, ये भी, अब इसमें देखिए 29 टॉप में आप अल्फाबेट यूज कर रहे हैं और डिजिट यूज कर रहे हैं, लेकिन पहला रूल तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन दूसरा रूल क्या कहता है कि द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए लेटर, और यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर क्या है आपका, डिजिट है, तो इसलिए ये भी इनवैलिड है। थर्ड इज ब्रेक, ब्रेक कीवर्ड आर नॉट अलाउड, ब्रेक क्या है, कीवर्ड है, पहले से डिफाइंड वर्ड है, इसको आप आइडेंटिफायर नेम के लिए यूज नहीं करेंगे। फिर है माई डॉट फाइल, माई फाइल ठीक था, कैपिटल लेटर में माई फाइल भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे ये डॉट साइन है, ये स्पेशल कैरेक्टर है विच इज नॉट अलाउड वाइल नेमिंग आइडेंटिफायर, सो दिस इज ऑल्सो एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। तो आपके क्वेश्चन इसमें बेसिकली इस तरह से आ सकते हैं कि आपको कुछ नाम दिए हो और आपको पूछना हो, आपसे तो इसमें माई डॉट फाइल है, तो इसमें डॉट है जो स्पेशल कैरेक्टर, दैट इज नॉट अलाउड इन नेमिंग एन आइडेंटिफायर। नेक्स्ट इज tokens. The next token is literal. Literal is also known as constant. Constant means जैसे आप लिखते हैं ना, जैसे एरिया आपके सर्किल का होता है 2 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे r जो है वो वेरिएबल है और जो पाई है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो दैट इज अ कांस्टेंट। तो ऐसे आइटम्स जिनकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती है उनको हम कांस्टेंट या लिटरल कहते हैं, दैट मीन्स फिक्स वैल्यू। तो पाइथन के अंदर जो लिटरल्स हैं, टाइप्स ऑफ लिटरल्स हैं, वो हैं स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल, बुलियन, स्पेशल लिटरल एंड लिटरल कलेक्शंस। Next token is called operator, and operator are the tokens that trigger some computation when applied to a variables and objects in an expression. Operator क्या होते हैं, ये इस तरह के symbols होते हैं जो जब किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के साथ किसी एक्सप्रेशन में यूज किए जाते हैं तो वो किसी कंप्यूटेशन को या किसी कैलकुलेशन को ट्रिगर करते हैं। The variables and objects to which operators are applied are called operand. तो जिन वेरिएबल और ऑब्जेक्ट पे ऑपरेटर अप्लाई करते हैं उनको ऑपरेंड कहते हैं। तो दो टर्म है, ऑपरेंड और ऑपरेटर।
अगर मैं एग्जांपल दूं, आप लिखते हैं a प्लस बी, तो a और b ऑपरेंड हो गए और प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। यानी ये प्लस ऑपरेटर हम a और b पे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए a और b ऑपरेंड हो गए और प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, ऐसे ऑपरेटर जिनके लिए आपको एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे आपके पास x है और आप लिखते हैं माइनस एक्स, तो x की वैल्यू बदल जाती है। तो यहाँ पे माइनस एक्स क्या कर रहा है, x का वेट चेंज कर दे रहा है, उसकी जो सिग्निफिकेंस जो वैल्यू है उसको बदल दे रहा है। तो वहाँ पे माइनस को हम क्या कहेंगे, यूनिरी ऑपरेटर। लेकिन अगर हम लिखते हैं a माइनस बी, तो यहाँ पे आपका माइनस यूनिरी ऑपरेटर नहीं है। तो उनको उस समय जब हमें ऐसे जब ऑपरेटर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू और मोर ऑपरेंड्स टू ऑपरेट अपॉन, सच ऑपरेटर्स आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। तो बाई मीन्स टू, यूनरी मीन्स यूनिट, वन। तो जो ऑपरेटर एक ऑपरेंड की जरूरत जिनको होती है उनको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। ऐसे ऑपरेटर जिनको दो ऑपरेंड की कम से कम जरूरत होती है उनको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये सब क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब बाइनरी ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू, स्लैश, इक्वल टू, इनको आप डिटेल में किसी दूसरे वीडियो के अंदर आपको समझाया जाएगा कि एक्सपोनेंट, रिमाइंडर, इंटीजर, डिवीजन, ये सब क्या होते हैं। और ये स्लैश इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं इनको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो ये सब आपके टोकन्स, एक और टोकन होता है उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पंक्चुएटर्स। जैसे आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उस लैंग्वेज के अंदर कुछ पंक्चुएशन मार्क्स आप यूज़ करते हैं, जैसे कॉमा है, सेमी कॉमा है, कोटेशन मार्क्स हैं। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी हमें कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ये सिंबल हमें क्या हेल्प कर सकते हैं, ये टू ऑर्गेनाइज प्रोग्रामिंग सीक्वेंस स्ट्रक्चर एंड इंडिकेट द रिदम एंड एम्फेसाइज ऑफ expressions, statements and program structures. For example, ये आपके पास हैश का सिंबल है, कोटेशन मार्क है, स्लैश है, स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रेसेस हैं, एट द रेट सिंबल है। ठीक है, these are some examples of punctuation marks in Python programming language. So this is all about tokens that we will be using in Python programming. Thank you very much.